study population. So population is a overall the whole elements, a large area or the whole the area which we are considering to select a source or sample from that population. For example, we are just selecting the institutions, the MBA institutions in Haryana. So all the institutions which having the MBA course will be the population, and from that population we will select some of the MBA institutions in the from the all the population. Whole population means number of the MBA institutions in Haryana. For example, the 100 institutions, MBA institutions in Haryana, that the 100 will be the population, and we are selected the 20 or the 10 the MBA institution from that, which is a sample. So sample means the sample is a small subset of the population which represent the whole population and having the all characteristics of the population and having the homogeneous characteristics of the population. What if the population have the characteristics? The same the sample have the characteristics. So the sample means it is a true representative of the population which reflect and represent the whole population and having the all the characteristics of the population. That is called as the sample. तो सैम्पलिंग क्या होती है? द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट इज द सैम्पलिंग. सैंपल क्या होता है? ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन एंड हैविंग द homogeneous characteristics of the population. And sampling is the procedure or process of selecting a sample from the population. So there is a two techniques of that selecting a sample. One is the probability sampling, another is the non-probability sampling. So probability sampling we further categorize into the different parts. So like the random sampling, the stratified sampling, the cluster sampling, the systematic sampling. So these are the probability sampling. अब probability sampling क्या होती है? What is the probability? Can anybody tell me what is the probability? When everyone has equal chance of getting selected. Yes, very good. The probability which have the each and every person or object or the any setup of the group have the equal chance to be selected from the population and having the same chance. So that is the probability. So in the probability method, there are the simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, and cluster sampling. So the simple random sampling is the same, which already told by one scholar, that each and every person have the equal chance to be selected. So you that can be the from the random draw or the you have to just throw a dice. So whatever the random number you will get from that, throwing a dice or supplying a cards. So you can get the each and every cards have the equal chance. So selecting a one card from the 52, what will be the probability? 1 divided by 52. Okay. And if you're selecting the red one from the whole cards, so what will the probability? Total red कितने होते हैं? 26 होते हैं. I think 26 divided by 52. So this is the either you can just draw the sample from the a draw methods or the from the lucky draw, which you have select the one object or one by one. So from the whole class you have to be selected the 5 students, so you can randomly select any 5 students from the 50 students. So that is the random sampling. The stratified sampling means strata means the layers. If you have to divide the whole population into different strata. If you are, for example, you are to study the Haryana, so you can divide the whole Haryana as per according to the different strata or different districts. So one district will be the one strata. Then you have to randomly select the strata, and from that strata you will select the respondents. ठीक है, पूरा स्टेटा पूरा हरियाणा है, एक वो हो गया पॉपुलेशन होगी, उसमें से आप डिवाइड कर दिया डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट जोन से डिवाइड कर सकते हो. जैसे हमारे डिविजनल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कितने 6 डिवीजन है पूरे हरियाणा की, 6 डिवीजन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हो. वो एक डिवीजन आपका स्टेटा हो जाएगा.
ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्ट्रेटा के अंदर मान लो 5 डिस्ट्रिक्ट आ गए, 5 डिस्ट्रिक्ट में से आपने रैंडमली 2 डिस्ट्रिक्ट ले ली। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटा आ गया, मान लो अम्बाला सब डिवीजन आ गया, तो अम्बाला में से एक हिसार में से ले लिया आपने डिवीजन, गुरुग्राम डिवीजन में से ले लिया। तो हर एक डिवीजन में ख्याल 4-4 5-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें से आपने रैंडमली एक दो डिस्ट्रिक्ट सभी से ले लिए। तो स्ट्रेटिफाइड तब पॉसिबल है उसके जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज है। तो उस केस में यू हैव टू बी जस्ट यूज द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये सैंपलिंग है जब आपका जो पॉपुलेशन है होमोजीनियस ग्रुप्स है अंडर सर्टेन क्राइटेरिया। उस केस में जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, तो ये जो है हर एक जो ग्रुप है आप जो सिलेक्ट करोगे, वो एक जो ग्रुप है वो विच इज बी कॉल्ड एज द स्ट्रेटा। तो उस स्ट्रेटा में फिर क्या होता है, द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ईच स्ट्रेटा इंडिपेंडेंटली। So the estimate is calculated from the data obtained from all the stratum. So proper classification of the population into the various strata and a suitable sample size from each stratum are the two major points to be considered in stratified random sampling. So इसमें क्या होता है कि जो भी आपने लिया है वो उसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है हर एक स्ट्रेटा में होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी। ठीक है। तो इसलिए ये किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो और बहुत फैली हुई हो, तब आप डिवाइड करते हो ताकि उसको थोड़ा सा डाटा साइज को आप छोटा कर सको। तो उस केस में ये सुटेबल है। उसके बाद है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होती है, कोई बताएगा? Every kth element is selected after a random start. Yes, you have to follow a system after selecting the one person or one object at the randomly. Then after you will follow some system or procedure or a method to select the next variable or next data. फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, क्लास में 1 से 50 तक रोल नंबर है, तो आपने रैंडमली एक बच्चे को उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसका रोल नंबर 4 आ गया। फिर आपने एक यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग सिस्टम। भी 4 के बाद मैं ओड नंबर लूंगा या 4 का मल्टीपल लूंगा। जैसे 4 का आपने 8 रोल नंबर ले लिया, उसके बाद 12 रोल नंबर, फिर आपने 16 रोल नंबर पिक कर लिया, फिर आपने 20 रोल नंबर, फिर 24, 28 लाइक दैट। देन यू आर फॉलोइंग द सिस्टम टू सिलेक्ट द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। समझ में आ गया? पहला जो सैंपल आपने लेना है वो आपको लेना है रैंडमली। उसके बाद जो भी नंबर निकल के आए उसमें आप एक सिस्टम फॉलो कर सकते हो। तो इसमें आप 3 ऐड करके नेक्स्ट ले सकते हो, या उसका स्केयर करके, या आप उसमें माइनस या पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी वट एवर द मेथड इज सुटेबल, बट यू हैव टू फॉलो सम सिस्टम। दैट इज द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? Population is divided into clusters and entire clusters are selected. Yes. So cluster are the a location within which an intact group of members of the population can be found, like that को neighborhoods हो गया, को school districts हो गए, schools हो गए, classrooms हो गए। तो different classrooms in a school will be considered as a cluster. आपका Yes, 20 sir. क्लासरूम है तो एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम है, दैट विल बी कंसीडर एज ए क्लस्टर। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट आप एक सब डिवीजन या कोई पंचायत में डिवाइड कर देते हो, तो एक पंचायत विल बी कंसीडर एज ए क्लस्टर। अब इसमें देखो क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, ये जब होती है, जब पॉसिबल है, जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज हो एंड ये एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन आपकी फैली हुई है। ये कन्वीनियंट भी रहता है और थोड़ा सा फास्ट भी होता है। और हम हर एक पॉपुलेशन को, हम एक पॉपुलेशन के अंदर वी डोंट नीड टू नेम्स ऑफ द एवरीवन इन द पॉपुलेशन। बट इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें
जो रिप्रेजेंटेशन से कई बार वो इश्यू आ जाता है कि दैट विल नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशंस। तो इसमें ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में। उसके बाद हम सैंपल साइज देखते हैं, क्या सैंपल साइज लेनी है। फिर एक लॉजिकल क्लस्टर हम उसमें डिफाइन करते हैं। फिर सारे क्लस्टर को लिस्ट करते हैं और जो पॉपुलेशन के अंदर एक क्लस्टर बनाते हैं। फिर एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं कि पर क्लस्टर में कितनी पॉपुलेशन आ रही है हर क्लस्टर में। फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं, कितनी जरूरत है। अगर हम सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर एस्टिमेट साइज ऑफ क्लस्टर निकालनी है तो हम उसको करते हैं, जितना भी क्लस्टर हमें जरूरत है उसको हम जैसे पॉपुलेशन, तो पर क्लस्टर वो पॉपुलेशन कितनी आएगी, इस तरह से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो हम उसमें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं क्लस्टर्स को उसके अंदर से। फिर हम उस जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं क्लस्टर्स के अंदर से, उनको हम हमारी स्टडी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हम जो इसका प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। तो इसमें हर एक जो क्लस्टर है वो एक अलग से सैंपल, यूनिक सैंपल माना जाएगा। जैसे क्लस्टर 1 है, उसमें से एक सैंपल निकाल लिया, क्लस्टर 2 में से दूसरा सैंपल निकाल लिया हमने, क्लस्टर 3 में से एक तीसरा सैंपल निकाल लिया। तो वन सैंपल विद द इंडिपेंडेंट टू द अनदर सैंपल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ बताता हूँ। देखो, जो आपका स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग होती है ना, उसमें जो हर स्टेटा होता है दैट हैव द होमोजेनियस पॉपुलेशन। हर एक स्टेटा के अंदर होमोजेनियस पॉपुलेशन होगी, मींस सेम तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। बट the within the strata, each and every individual have the homogeneous, but between the strata they have the heterogeneous populations. अब एक स्टेटा हमने बना लिया कि ये जो एज ग्रुप है 15 से 30 वाले एज ग्रुप है, इसका एक है ये अलग से स्टेटा है। एक हमारा 35 से 40 वाला जो एज ग्रुप है उसका स्टेटा अलग है। तो उन एक जो एज ग्रुप है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ले ली एज ग्रुप, तो सबका सिमिलर एज ग्रुप है, तो वो होमोजीनियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। दूसरा जो एज ग्रुप है उसमें अपनी एक अलग से होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 35 से 40। बट आपस के अंदर उन क्लस्टर्टा का जो हेटेरोजीनियस रहती है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट विद इन द जो स्टेटा है वो होमोजीनियस होती है। तो हर एक जो स्टेटा से हम जो सैंपल लेते हैं वहां से, उस एज ग्रुप से भी ले लिया, उस एज ग्रुप से भी ले लिया, उस एज ग्रुप से भी ले लिया हमने। बट क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि एक क्लस्टर है, 5-6 क्लस्टर बना दिए हमने, उस क्लस्टर्स में से हम क्लस्टर कोई भी चूज करेंगे, तो विद इन द क्लस्टर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव द हेटेरोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हेटेरोजेनिटी रहती है क्लस्टर के अंदर, पर स्ट्रेटा में होमोजेनिटी रहती है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, एक मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट को आपको। सर क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर पूरा हम क्लस्टर ही चूज करते हैं ना एज अ हाँ सैंपल, हाँ 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 और बिल्कुल। स्ट्रैटा में तो हर स्ट्रैटा में से हमने चूज करना ना सर सैंपल। हाँ हाँ अभी तो देखो यही ये, बेसिक डिफरेंस तो यही है सर ज्यादा तो। हाँ ये विजिबल हो रहा है। हाँ जी सर। अब देखो इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है यहाँ पे ये। अब इसमें देखो ये जो स्टेटा है इसमें सारे होमोजेनिटी है, ईच एंड एवरी पर्सन होमोजेनिटी विद इन द स्टेटा। इसमें से हमने मान लो एक उठा लिया, इसमें से हम 2 उठा लिए, यहाँ से मैंने 3 बंदे उठा लिए, यहाँ से मैंने 2 उठा लिए। तो ये क्या होता है कि
है उसके स्टडी में इंक्लूड हुआ। अब इस क्लस्टर के अंदर देखो ये पर्सन अलग है, ये अलग, ये दोनों अलग है, इसमें ये दोनों अलग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो ये विद इन द क्लस्टर ईच एंड एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पूरे क्लस्टर में मैं स्टडी कर रहा हूँ एक परचेजिंग बिहेवियर, या मैं उनका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये मैं स्टडी कर रहा हूँ पूरे हरियाणा में। तो पूरे हरियाणा में मैंने सब डिवीजन है तो उसके हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक जो डिवीजन है उसके अंदर मान लो 5-6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने कोई भी उठा लिया, मैंने एक क्लस्टर उठा लिया एक डिस्ट्रिक्ट का। तो एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने मान लिया कि एक क्लस्टर है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में से सारे के सारे पर्सन मैंने ले लिए। तो उसमें जो हेट्रोजिनिटी भी आएगी, क्योंकि कोई ऐसा भी होगा किसी का एटीट्यूड कुछ होगा, किसी का एटीट्यूड कुछ होगा, तो उसमें एज के अकॉर्डिंग भी ले लिया मैंने, जेंडर के अकॉर्डिंग भी, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग भी ले लिया मैंने। हर तरह के वहाँ पे लोग मिलेंगे, हर तरह का ओपिनियंस उनको लोगों का मिलेगा। तो ये होता है क्लस्टर। अब इसमें ये नहीं कहते कि मेरे को तो ये स्टडी करनी है सिर्फ उन्हीं को लेना है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में, हर किसी को ले लिया, फिर उसके बाद आप उसमें ओपिनियन जानोगे उसको कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का क्या ओपिनियन है। एक स्टडी ये है, फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूँ कि स्मोकर और नॉन स्मोकर्स की, ठीक है। तो मेरे को पहले ही पता है कि मैं स्मोकर्स का डाटा लेना है, नॉन स्मोकर्स का लेना है, बाकी को मेरे को छोड़ देना है। वो आपका स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा कि एक स्टेटा मैंने ये बना लिया, ये स्मोकर्स का है, ये दूसरा स्टेटा नॉन स्मोकर्स का है। मैंने 10 बंदे स्मोकर्स के ले लिए, 10 बंदे नॉन स्मोकर्स के ले लिए, तो उनमें से मैंने उठा लिए। तो ये होगा स्ट्रेटिफाइड सैंपल। क्लियर? और ईटिंग हैबिट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि कौन से वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो स्टेटा मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने बांट दिया डिफरेंट स्टेटा में। तो उस पर एक स्टेटा में से हमने ले लिए, उस स्टेटा में से जो पूरा स्टेटा तो हमने ये बना लिया जिसमें हमारे जो स्मोकर है, दूसरा स्टेटा है नॉन स्मोकर है। तो कुछ हमने उस स्टेटा से ले लिया जो सिर्फ स्मोकिंग करते हैं, दूसरा नॉन स्मोकर्स। तो इस तरह से आप ये पूरा सेलेक्ट करोगे जो सैंपल को। तो क्लियर है ये? अगर अभी भी क्लियर नहीं तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? Clear है सर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें कन्वेंस सैम्पलिंग है, परपसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैंपल्स हैं एंड कोटा सैम्पलिंग है। अब कन्वेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि यू हैव टू बी जस्ट सेलेक्ट द data as per according your convenience, whatever you feel the suitables and which taking the less time and minimum time you can get the maximum data, and though you have to be get the all the respondents as per according your objective needs nearby your area, and you have to be collect whatever feel you whatever suitability you feel। तो वो आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। मान लो मैं कहूँ कि आपको डाटा कलेक्ट करना है कि आपको परचेजिंग बिहेवियर, कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर जानना है, तो आप कहीं से भी इजीली आप कलेक्ट कर सकते हो डाटा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग एरिया ले सकते हो कि मैं तो नियर बाई अम्बाला के आसपास रह रहा हूँ तो अम्बाला के आसपास का एरिया ले लूंगा। वहां से रिजल्ट तो वहां से भी आ जाएगा कि आपको कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर स्टडी करनी है। तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको स्पेसिफिक कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, वो डाटा मेरे को वहीं पे मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग आप यूज कर सकते हो। बट समटाइम इट विल बी ए मैनिपुलेशन और द स्टडी में बी द बायस्ड, एक बायसनेस में आ सकता है। तो लिमिटेशंस आप जब भी स्टैट के अंदर लिमिटेशन तो होती है कहीं ना कहीं, हम एग्जैक्ट 100% तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। तो इसलिए हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऊपर नीचे मान के चलते हैं स्टडी में कि रिजेक्शन एरिया, एक्सेप्टेंस एरिया, जो रिजेक्शन एरिया है और एक्सेप्टेंस एरिया 5% रहेगा, रिजेक्शन एरिया इतना 95%, तो वो हम मान के चलते हैं पहले। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है एज पर अकॉर्डिंग योर सुटेबिलिटी, कन्वीनियंस एज पर अकॉर्डिंग टाइम, एज पर अकॉर्डिंग बजट, यू हैव टू सेलेक्ट द सैंपल नियर बाय योर एरिया which suit and meet the requirements of your research objectives. Now purposive sampling, the purposive sampling that you have to select the data and select the person as per according your research purpose and objectives. कि आपका पर्पज है, you want to know the life, you want to know the routine life of the IT professional in IT industries.
तो आपका पर्पज ये है, तो आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, आपका पर्पज क्या है कि हम आपको लाइफ रूटीन जाननी है आईटी प्रोफेशनल की, कि वो कंटिन्यू लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उसकी लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसी द पर्पज यू हैव टू बी सिलेक्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पज, कि मेरे को ये पर्पज है, तो ये मेरे का स्टडी का अकॉर्डिंग सूटेबल है, तो ये मैं इन्हीं को लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। आईटी प्रोफेशनल सिर्फ उन्हीं को आपको कैटर करना है जो डेवलपर है, जो बैठे रहते हैं, कि जो नॉन आईटी प्रोफेशनल आईटी कंपनी में जो नॉन आईटी बंदे भी काम कर रहे होते हैं उनको आप छोड़ दोगे, सिर्फ पर्पज के अकॉर्डिंग जो है उन्हीं को आप लोगे। दैट इज द पर्पसिव सैंपलिंग। क्लियर? पर्पसिव भी कह सकते हो उसको, जजमेंटल सैंपलिंग भी कह सकते हो, कि जजमेंट मान लो आपने ये करना है कि जो उनको डाटा कलेक्ट करना है उन लोगों का जो आज भी जो केबल टीवी देख रहे हैं, जिसके अंदर डीटीएच नहीं है, केबल टीवी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा जजमेंट हो जाएगा आपके घर में, जहां भी लगी दिखेगी हाँ इसके घर में तो ये वायर गई हुई है, तो हो सकता है या तो ये इंटरनेट की होगी या तो फिर ये डीटीएच या कोई केबल टीवी होगी। तो आप थोड़ा जजमेंट करके उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हो, उस हाउस होल्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो जो आज के आपके पर्पज के अकॉर्डिंग हो, और यू कैन जजमेंट एक सिंपली जज आप कर लोगे। हाँ आपको कई बार मान लो जाते हो कोई देखते हो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये तो साउथ से लग रहा है ये आदमी, तो आपको साउथ के लोगों का डाटा कलेक्ट करना है नॉर्थ के लोगों के बारे में, कि उनका ओपिनियन क्या है नॉर्थ के बारे में। तो नॉर्थ में आप घूम रहे हो कहीं भी देखो तो साउथ का कोई भी होगा उसको देख के पता चलता है ये दैट पर्सन बिलोंग टू साउथ। तो इस तरह से पर्पसिव सैंपलिंग या जजमेंट सैंपलिंग आप कर सकते हो। क्लियर? अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? देखो स्नोबॉल सैंपलिंग इज लाइक ए स्नोबॉल। जब हम बर्फ का गोला फेंकते हैं पास करते हैं जब खेलते, एक हमने उसकी तरफ पास किया फिर उसने आगे पास किया फिर उसने आगे पास किया, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए रेफरल सैंपलिंग और रेफरेंस सैंपलिंग यू कैन आल्सो कॉल इट। कि ये दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इट वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द वेरी रेयर डाटा। तो इन दैट केस ऑफ द रेयर डाटा यू हैव टू बी जस्ट टारगेट thought about that things or that situation or that scenario, that will be suitable for historical data, or ancient time का data, कोई historical data है and that can already been happen in the very ago, और कुछ ऐसे rare data है, rare cases है, the things which is very difficult to collect, तो rarely cases में आप ये snowball sampling यूज करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1947 में, या जो आज़ाद हिंद फौज में जो जिनकी फैमिली इंक्लूड थी, दादा परदादा जो थे, उनका डाटा मेरे को कलेक्ट करना है। तो उस केस में बड़े आसानी से तो मिलेंगे नहीं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं पहले कोशिश करूंगा आसपास जाने की, कौन जो बंदा हो सकता है, कौन से गांव में है जहाँ जो आज़ाद हिंद फौज में या 1947 की जो आज़ादी की लड़ाई में जो जंग लड़ी थी उसमें इन्वॉल्व था, जो फ्रीडम फाइटर है, वहां जाऊंगा, उस आदमी को ढूंढूंगा, उससे फिर मैं उनकी फैमिली या उस जो बंदा जिंदा है या उससे पूछूंगा, या उसका दादा जो भी मौजूदा इंसान है उससे पूछूंगा, उससे आई विल स्टार्ट आस्किंग सम क्वेश्चन रेलेवेंट टू माय स्टडी एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। So after asking those some certain questions, I will just ask them to provide the reference of the another person who will be the part of that. So you can also just get some reference from that person. So वो आपको बता देगा कि मेरे साथ ये बंदा भी था, ये फैमिली भी, तो वो बंदा उस गांव में रहता, वो भी मेरे साथ ही आजाद हिंद फौज में था या फ्रीडम की लड़ाई उसमें था। तो आप रेफरेंस लेके उसके पास जाओगे, फिर उससे और रेफरेंस लोगे, फिर आगे और जाओगे। तो इस तरह से आप रेफरेंस लेते लेते आप डाटा कलेक्ट करोगे। दैट इज कॉल्ड एज द स्नोबॉल सैंपलिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद कोटा सैंपलिंग। अब कोटा है, कोटा क्या होता है? एक प्रोपोर्शनेट होता है, एक परसेंटेज होता है, ठीक है। हर एक को कितना, जैसे रिजर्वेशन होता है हमारा, कितना कोटा बीसी ओबीसी का जो जनरल का कोटा होता है, सेम लाइक दैट। तो वी हैव टू बी जस्ट असाइन ए कोटा फॉर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब डाटा कलेक्ट कर रहे हो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का, ठीक है। तो राजस्थान की अलग पॉपुलेशन, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग पॉपुलेशन है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? देखो जीके में मैं भी बहुत कमजोर हूँ, जनरल नॉलेज मेरी 0 है। तो पॉपुलेशन हरियाणा की ज्यादा है या राजस्थान की या पंजाब की? सर राजस्थान की।
ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें ज्यादा हम प्रोपोर्शनेट लेंगे। हम पहले उसका रेशियो निकाल लेंगे, भाई पॉपुलेशन किस में ज्यादा, फॉर एग्जांपल राजस्थान में ज्यादा, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन हमने फॉर एग्जांपल 1000 का डाटा लेना है, 1000 का डाटा लेना है, तीनों स्टेट से लेना है 1000 का डाटा। तो 1000 का आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो वो सबसे ज्यादा मेरे को लेना है, फॉर एग्जांपल मेरे को 50% तो लेना है मेरे को राजस्थान से। तो 1000 का 50% कितना हो गया, 500 आप ले लोगे कहाँ से, राजस्थान से। उसको कोटा असाइन कर दिया आपने 50%। फिर उसके बाद पॉपुलेशन आती है पंजाब की, तो 30% मैं कहूँगा भाई मैं तो पंजाब से लेना है, क्योंकि उससे थोड़ी कम है पॉपुलेशन राजस्थान से पंजाब की। तो उसमें आपने कोटा असाइन कर दिया 30%। तो 1000 का 30% कितना हो गया, 300। 500 आपने राजस्थान से ले लिया, 300 आपने पंजाब से ले लिया, बच गया कितना, 20%। अब 20% कोटा आप असाइन कर दोगे हरियाणा को, तो 20% 1000 का कितना है, 200। तो 200 का डाटा आप लोगे हरियाणा से। तो इस तरह से कोटा असाइन करके आप पूरा डाटा सिलेक्ट करोगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप Yes, कोटा sir. असाइन कर सकते हैं, तो कितने प्रोपोर्शनेट में आपने ये लेना है। तो पॉपुलेशन का पहले प्रोपोर्शनेट निकाल लो, उसी का अकॉर्डिंग फिर जो सैंपल जो साइज निकालोगे उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लो सेम रेशियो में। ये मैंने शायद आपको शेयर की है, ये आप गो थ्रू कर लेना इसको। ठीक है, एक इसमें जो डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी मेथड होता है, सेकेंडरी मेथड होता है। अब प्राइमरी मेथड में कौन कौन से मेथड है, जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, ठीक है, क्वेश्चनर मेथड हो गया, शेड्यूल मेथड हो गया, केस स्टडी बेस्ड मेथड हो गया। तो ये क्या आपकी प्राइमरी मेथड है। अब जो प्राइमरी मेथड्स हैं ये भी आ सकते हैं, सारे मेथड्स डिटेल में पढ़ लेना कि क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर में किस तरह के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करते हैं, कि हाउ यू कैन जस्ट व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया टू प्रिपेयर ए गुड क्वेश्चनर, और कौन कौन सी तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, क्वेश्चनर के अंदर। सर आप एक बार सैम्पलिंग साइज बता देंगे, साइज सैम्पलिंग साइज। यस सर। सैंपल साइज मैंने उस दिन करवाया था, आप थे नहीं उस दिन। सर थे, एक बार रिवाइज करवा दीजिए सर। थे मैं सर, अटेंड किया है आपका क्लास। ओके ओके, सैंपल साइज मैं बता देता हूँ। सर सिर्फ प्राइमरी मेथड्स आएंगे ना, सेकेंडरी मेथड्स तो नहीं आएंगे? हाँ प्राइमरी आएंगे, सेकंड का थोड़ा बहुत आ जाएगा तो थोड़ा बहुत लिख देना। सेकेंडरी में कौन सा होता है, पब्लिश फॉर्म में होते हैं, नॉन पब्लिश फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अनपब्लिश और पब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा। तो दो में डिवाइड करते हैं, पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश। पब्लिश में आपका सब ये आ गया, आपका ब्लॉग आर्टिकल्स आ गए, वेबसाइट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियडिक्स, बुक्स। नॉन पब्लिश में एनी रिपोर्ट विच इज नॉट पब्लिश विच हैविंग विद द गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में अनपब्लिश फॉर्म में है, वो रिपोर्ट आप रिक्वेस्ट से वहाँ पे विड्रॉ उनसे ले सकते हो, फोटोकॉपी ले सकते हो, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए, जो बहुत सारे ऑफिसेज में या कंपनीज में रखी हुई है, जो कहीं भी पब्लिश नहीं, अनपब्लिश होती है। बस थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो आप। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ना दो स्टडीज में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये कोहर्ट स्टडी और एक क्रॉस सेक्शनल, वो भी एक बार बता देंगे सर। कौन कौन सी? कोहर्ट एंड क्रॉस सेक्शनल। अच्छा ओके, कोशिव या कोर्ट, ठीक है। ये क्या होती है कि एसोसिएशन जब हम करते हैं, दो स्टडी जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, वन स्टडी डिपेंड ऑन द अनदर स्टडी।
अब 2 स्टडी जो चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, तो उस केस में क्या होती है, जब एक स्टडी होती है तभी दूसरी आप उससे रिलेटेड होगी। मान लो एक ने आपने स्टडी कर ली कि अपने कस्टमर्स का ओपिनियन जानना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको ओपिनियन जानना है। पहले उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड आप जानोगे, फिर उसमें उसके सजेशंस कस्टमर के क्या है, उसके बाद उसका जो कुछ इंप्रूवमेंट करके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, उससे रिलेटेड आपने फीडबैक लिया है। तो जो एक स्टडी दूसरी स्टडी पे, पहली वाली स्टडी पे डिपेंड होती है, वो आपकी कोहॉर्ट या कोहेसिव जो आपकी जो स्टडी होती है। अब क्रॉस सेक्शनल क्या होती हैं, आपके पास अगर एक किसी भी, फॉर एग्जांपल अभी 5G मोबाइल फोन चल रहे हैं, ठीक है, अभी जो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, 6G मोबाइल फोन आ जाएंगे, जैसे 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो जब आप क्रॉस सेक्शनल कब करोगे, जब पहले और बाद के इफेक्ट को आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद किसी कंपनी का आप कंपेयर करना चाहते हो या कस्टमर का ओपिनियन कंपेयर करना चाहते हो, तो आपकी क्रॉस सेक्शनल होती है वो डाटा, कि उसमें डिफरेंट तरह का आपका जो डाटा, सिचुएशन चेंज हो गई है, सेम सिचुएशन नहीं है, तो सिचुएशन चेंज होने के बाद पहली सिचुएशन लास्ट की सिचुएशन में उनके ओपिनियन में कितना डिफरेंस आया, तो प्री एंड पोस्ट जो स्टडी आप करते हो वो आपकी क्रॉस सेक्शनल होती है। दैट मीन सर क्रॉस सेक्शनल में जहाँ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों होते हैं, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल। और कोहार्ट जिसमें 2 स्टडीज और इंटररिलेटेड होती हैं, इंटररिलेटेड होती हैं दोनों स्टडी एक दूसरे से। ओके, उसमें पोस्ट एंड प्री ऐसे हम उसमें पोस्ट एंड प्री ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखते, तो दोनों स्टडी इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे की। बट इसमें कोहॉर्ट में दैट बोथ द स्टडी आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मार्किंग सेम क्या रहेगी सेशनल की, कि लॉन्ग क्वेश्चंस ही रहेंगे या शॉर्ट्स क्वेश्चन भी होंगे इसमें? नहीं, कई तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे देते हैं, कई टीचर से पूछ लो, बट मैंने तो आपको बताया था कि 30 मार्क्स के आएंगे जो क्वेश्चंस हैं। टोटल एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 जो क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट यूनिट में होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे सेकंड यूनिट में होंगे। तो आपने टोटल 4 में से करने होते हैं, दोनों यूनिट में एक करना होगा, फिर एक तीसरा किसी भी यूनिट में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके सर, फिर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन वी हैव टू टाइम? हाँ, यस। ओके, थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा सैंपल साइज को बता देता हूँ, और मैंने वीडियो भी किया, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी देख लेना। मैंने किया हुआ है शायद ग्रुप में जो चैनल मेरा, बाकी उसमें मैंने डाला हुआ है, बाकी दोबारा बता देता हूँ आपको। ये विजिबल है ना पीपीटी? यस सर। यस। देखो सैंपल साइज क्या होती है, जो मैंने बताया, सैंपल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड है, रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशंस इन द स्टडी। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ सैंपल को? एक तो होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो आपको जितना आप क्राइटेरिया लोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके अकॉर्डिंग जैसी प्रोबेबिलिटी सेट करोगे, आपका जो सैंपल साइज है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर होती है, पावर क्या होती है कि इसमें जो मैंने बताया टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जो कल बताया था मैंने, जितनी आप एरर उसके मान फेलियर या जो फेलियर का चांस लेके चलते हो, तो डिफरेंस होता है 1 माइनस अल्फा होता है, वो बीटा की पावर होती है 1 माइनस अल्फा, जो टाइप 2 एरर भी बोलते हैं उसको, 1 माइनस अल्फा, जो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो यूजुअली 80% इज एक्सेप्टेबल लेवल फॉर द पावर ऑफ द स्टडी। इट मींस दैट द रिसर्चर इज एक्सेप्टिंग द स्टडी misses a real difference in a 5 times। ठीक है, for most studies power can be increased up to 90% or more। ठीक है, तो 80% acceptable level of power का मान के चलते हैं इसके अंदर, मींस टाइप 2 एरर जो मान के चलते 1 माइनस जो अल्फा।
एक्सपेक्टेड जो इफेक्ट साइज है, हम ये भी देखते हैं कि इफेक्ट साइज क्या है। जो डिफरेंस होता है वेरिएबल्स वैल्यू का एक ग्रुप का और उसके जो दूसरे ग्रुप के साथ जो डिफरेंस है, वो भी रिप्रेजेंट करता है इसकी एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज क्या होगी। इनवर्सली भी प्रोपोर्शनेट विद द सैंपल साइज, तो देयर इज नो फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इफेक्ट साइज। को ये नहीं है कि आपकी मेरे को इफेक्ट देखना उसका अकॉर्डिंग मेरे को इतनी साइज चाहिए, कोई उसका कोई सर्टेन रूल नहीं है कि इफेक्ट साइज क्या होगी, कि मेरे का 100 जो मैं 300 इफेक्टिव साइज है या 400 है या 500 है या 600 है, तो वो इफेक्ट आप लोगे, मान लो मिनिमम सैंपल साइज आपको 300 लेने हैं, तो ये नहीं आप उसमें से 400 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, 600 भी ले सकते हो। तो ये सैंपल साइज जो है प्रोपोर्शनेट आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब पॉपुलेशन का जो इफेक्टिव साइज है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आप एक एक्सपेक्टेड ले सकते हो इसके अंदर। जैसे हमने जो फॉर्मूला पीछे किया था उसमें आप एस्टिमेशन मान के चलते हो कि जो भी पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन का वेरिएशन आप मान के चलते हो, इसमें वो इफेक्टिव साइज होगी आपकी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका इफेक्टिव साइज क्या होगी। हो सकता है 300 भी आपका इफेक्टिव हो जाए, हो सकता है 400 भी, हो सकता है 500 भी इफेक्टिव हो जाए, कि जो आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बट एक्यूरेट आपको निकालोगे जब फॉर्मूला लगा के, उससे थोड़ा एस्टिमेशन मिल जाता है कि मिनिमम इतनी सैंपल साइज तो आपकी रखनी पड़ेगी आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक आपकी डिस्पेरेसिबिलिटी को मेजर करता है। जितना डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उतनी कोरिलेशन कम होगा डाटा के बीच में। जितना डेविएशन कम होगा उतनी ही हाई कोरिलेशन रहेगा आपको वेरिएबल्स के बीच में। अब इसमें देखो मेथड है, हम डिटरमाइन करेंगे सैंपल साइज को जब पॉपुलेशन अननोन हो। जब इन केस ऑफ द पॉपुलेशन अननोन, तो वी यूज द कोचरन सैंपल साइज फॉर्मूला, दैट इज द जी स्क्वायर इनटू p, that p denoted the populations, 1 minus p, that is the probability, divided by e square. E means desired level of precision, the margin of error. अब इसको कैसे निकालोगे? अब कोचरन फॉर्मूला ये होता है, इसमें देखो ये जब आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ले रखा है, तो जेड की वैल्यू दे रखी है कि ये जो टेबल एंट्री ये है, और जो आपका व्हाइट स्पेस जो दिख रहा है ये आपका जो एक्सेप्टेंस एरिया है, और जो डार्क दिख रहा है ये आपका रिजेक्शन एरिया है इसके अंदर। तो इसमें एग्जांपल है कि एक लार्ज कैंपस में हैव द 15 to 20 के स्टूडेंट, ये मान के चला इसने। तो इंफॉर्मेशन वी स्टार्टेड कंसीडरिंग दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट ईट द लंच एट द स्कूल डाइनिंग हॉल्स। ये मान के चलते हैं, एक स्टडी आपने ली है कि ये स्टूडेंट की स्टडी करनी है कि एक लार्ज यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वी डू नॉट नो द कैंपस साइज हमें नहीं पता। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु ईट द लंच एट द कैंपस डिनर हॉल, कि डिनर के टाइम पे कैंपस में कितने बच्चे वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। बट वी डू नॉट हैव द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, हमने इनसाइड की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने कर रहे हो, हमें पॉपुलेशन इज अननोन फॉर अस। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड वी नीड टू आस्क दैट question to be able to determine with reasonable confidence what percentage of students conform to the sought behavior. So given the lack of the information, we start by considering that the 50% of the student eat lunch. तो इस तरह की जब population unknown हो उस केस में हम 50% मान के चलते हैं। ये एक पहले से ऐसे कोई इफेक्ट साइज कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ऐसे मान के चलते हैं कि लगभग 50% तो लंच करते ही करते होंगे डिनर के टाइम पे। तो ये जो इसका पी हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, वो 50% हो जाएगी। और जो इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% पे हमने ले लिया है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा वैल्यू है 0.05। तो 0.05 पे जो जेड की वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हम पीछे देखोगे, हर स्टैट की बुक में जो पीछे जो देखोगे उसकी वैल्यू होती है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, उसकी वैल्यू 1.96 होती है। तो जेड इज इक्वल टू 1.96। और जो हमने पॉपुलेशन कंसीडर कितनी की, 50% तो खाते होंगे, 50% ये होगी, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, और जेड की वैल्यू 1.96 होगी। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम आगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो 1.96 हमारी जी की वैल्यू आ गई थी, इसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 0.5, 50% हमने लिया था कि जो 50% तो कम से कम ये डिनर करते होंगे, तो 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 0.5, 50% है 0.15। नीचे एरर मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना लिया था, 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 0.05 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, लगभग पॉपुलेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आ गई 384.16 इज इक्वल टू, मतलब राउंड फिगर में हमने 385 हमने निकाल लिया। तो ये हमने निकाल लिया इन केस ऑफ द व्हेन पॉपुलेशन इज अननोन, जब पॉपुलेशन हमारी अननोन हो। तो 385 हमें डाटा सैंपल साइज लेना पड़ेगा।
फिर है कोचर मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन, जब हमारी पॉपुलेशन नॉन हो उस केस में क्या करेंगे। अब पॉपुलेशन हमने देखो ऊपर निकाली 385 ही निकाली थी, तो हमने फॉर्मूले में रख दी n0 मतलब 385 डिवाइड बाई 1 प्लस n हमें पता है कितना 385 हमने पीछे निकाला था माइनस 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर हमने कितना लेना है, पहले बता दिया हमें 600 स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है। पिछली केस में हमने पता नहीं था कितने स्टूडेंट हैं, इस केस में हमें पता है कि 600 स्टूडेंट है। तो टोटल n नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन कितना है, साइज ऑफ पॉपुलेशन 100, तो इसको निकालोगे तो ये 235 है। आपको सैंपल लेना पड़ेगा, लगभग ये हो गया कितना है, मतलब 45% के लगभग पॉपुलेशन का हो गया। तो ये 600 अगर स्टूडेंट हो 335 का आपको सैंपल लेना पड़ेगा। ये कोचरन का जो फॉर्मूला इन केस ऑफ द पॉपुलेशन नॉन। फिर उसके बाद यामनेज सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर सैंपल साइज। तो यामने का भी फॉर्मूला देखो n है, n हमारे पास दे रखा है 600 डिवाइड बाई 1 प्लस n 600 है मल्टीप्लाई बाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना ई स्क्वायर मतलब लेवल ऑफ प्रिसिजन 5% है तो 0.05 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गई 240। तो यामने के अकॉर्डिंग कितना आ गया सैंपल साइज 240 लेना पड़ेगा अगर आपका 600 पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले थे कुछ सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के। Yes, sir. Okay, if anybody have any questions, they can ask. Otherwise, you can leave. Okay, thank you so much all. Now you can leave. Okay, thank you, sir. 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 Okay, best of luck to all for your exams. Thank you, sir. Thank you, sir.
ये निकला हुआ